اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صلوات حمد ہے خدا کی جس نے پوری کائنات کو بنایا، تعریف ہے مصطفیٰ کی جس نے سب کچھ پہنچایا، اور احسان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اور اولاد ابو طالب کا جنہوں نے سب کچھ بچایا۔ انتہائی محترم واجب الاحترام بزرگان، انتہائی مختصر وقت میں یقیناً گرمی کے موسم میں آپ تشریف فرما ہے، ایک پیغام برادران جتنے بھی تشریف فرما ہیں بلا تفریق جو بھی یہاں آیا ہے وہ حسینی بن کر آیا ہے۔ تو جو ہے جی آپ جو بھی ذکر محمد اور آل محمد سنتا ہے، جس کے دل میں ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بارے میں بحث کرنا ہی غلط ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ ہم سب کا ایک نعرہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم نے۔ ہمارے پاس جو معیار ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، ہمارے پاس جو معیار ہے وہ ذات ہے پیغمبر اکرم کی۔ یہ ہمیں لوگوں نے غلط فہمیوں میں ڈال دیا ہے کہ جی فلاں کسی کو نہیں مانتا، فلاں کسی کو نہیں مانتا، فلاں کسی کو نہیں مانتا۔ میں بلا تفریق بات کرنے لگا ہوں کہ ہم شیعہ حیدر کرار ہر اس بندے کی عزت اور احترام کرتے ہیں جو رسول کا وفادار ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، جو رسول کا وفادار ہے۔ ہم کسی کی بات نہیں کرتے، جو میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم ہر اس بندے کا احترام کرتے ہیں جو رسول کا وفادار ہے جی۔ میں بات کر رہا ہوں، جو سمجھ آ رہی ہے میری سب کو کہ ہم ہر بندے کا احترام کرتے ہیں، اور ہم صرف نبی کا دفاع نہیں کرتے، ہم صرف نبی پاک کا دفاع نہیں کرتے بلکہ ہم نبی کے باپ دادا کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ یہ جو مجالس ہے اور ہمارے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ ہم اگر نبی کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جس کا ایمان ٹھیک ہو، اگر وہ فرعون کے گھر میں کیوں نہ ہو، ہم فرعون کی بیوی کو بھی مان لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد اہل بیت محمد ہمارے ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ جو رسول کا وفادار ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں عقیدہ کس کا ٹھیک ہے، ایمان کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہو، اگرچہ وہ فرعون کے گھر میں کیوں نہ ہو، ہم فرعون کی بیوی کو بھی مان لیتے ہیں، اور اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو وہ صاحب شریعت نبی کے گھر میں کیوں نہ ہو، ہم نوح کی بیوی کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اس کا عقیدہ نبی کے بارے میں ٹھیک نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ بلا تفریق ہے، شیعہ سنی مانتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس پر ہمارا سلام ہے۔ اور چلو میں دوسرا جملہ بدل دیتا ہوں کہ ہمارے نبی کے ساتھ چاہے کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول کا چچا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ مصطفیٰ کا فرما بردار نہیں ہے تو ہم ابو لہب پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور اگر وہ وفا کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہم ابو طالب پہ سلام کرتے ہیں، کیونکہ رسول کے ساتھ جو رشتہ جس کا ٹھیک ہے، جو نبی کا وفادار ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ میرے بعد ہمارے نہایت واجب الاحترام محترم یاسین قادری صاحب کا خطاب ہوگا، وہ بلا تفریق بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ محبت اہل بیت کیا ہے، محب اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ اس شیعہ سنی اجتماع میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے حضرت انسان، ہم قیامت والے دن تم سے نعمتوں کا سوال کریں گے۔ مجھے پتا ہے کہ احساس ہے مجھے گرمی کا، میں بھی اسی گرمی میں آپ کی خدمت میں سبق پڑھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے
जी बिस्मिल्लाह जनाब, ये ठंडक है, ये जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद का ठंड है। अच्छा जी, क़यामत में अल्लाह ने नेमतों का पूछना कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, जिसमें सूरह तकासुर में आखिरी आयत तक कुरान से बाहर बात नहीं कर रहा। सूरह तकासुर में अल्लाह फरमाते हैं हम तुमसे सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम क़यामत में तुमसे नेमतों का पूछेंगे। अब वो नेमतें क्या है? मैं कहूँ तो आप कहेंगे मौलवी साहब ये नेमत नहीं है। माशाल्लाह कौन सी नेमतें हैं? माँ बाप भी नेमत है, तो जो ये औलाद भी नेमत है, ये आंखें भी नेमत है, ये जिस्म भी अल्लाह की नेमत है, ये हवा का चलना भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह किस नेमत का पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी थी? भाई क़यामत में जब पूछना है अल्लाह ने, चलो मैं इमाम के दस्तरखान की बात करता हूँ। आपके और मेरे छोटे मौला का दस्तरखान लगा हुआ था, अनवाउ अक़साम के खाने पड़े हुए थे। अब उन खानों को देखकर एक हाफिज साहब बोले, तो जो कहूँगा एक हाफिज साहब बोले, मौलाना कुरान में फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम क़यामत में नेमतों का सवाल करेंगे। मौला ये इतने ज्यादा खाने हैं, अल्लाह क़यामत में पूछेगा कि इतने खाने दिए थे तो क्या जवाब देंगे? नहीं और किया आपने कि अल्लाह खानों का सवाल करेगा, हमारे सामने तो खाने नेमत है, अल्लाह क़यामत में खानों का पूछेगा इतनी नेमतें हैं, पहले तो मुझे उस बंदे पे सवाल करना है, अरे तू कुरान किसे सुना रहा जो खुद वारिस है कुरान है? कि कुरान किसे सुना रहे जो खुद वारिस है कुरान है। कहते मौला अल्लाह पूछेगा ये मैंने तुम्हें खाने दिए। इमाम मुस्कुराए, इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं अरे देखो बेशक ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह इससे बड़ा बुलंद है, इससे अल्लाह बहुत बुलंद है कि अल्लाह तुमसे पूछे मैंने तुम्हें रोटी दी थी, मैंने तुम्हें चावल दिए थे, मैंने तुम्हें आम खाने के लिए दिए थे, मैंने तुम्हें सेब खाने के लिए दिए थे। अल्लाह इससे बड़ा बुलंद है कि तुमसे खानों का सवाल करेगा। अल्लाह क़यामत में सवाल करेगा, वो ये खाने नहीं है, वो आले मोहम्मद की मोहब्बत है। तुम्हारे दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत है क्या नहीं? है या नहीं? मैं एक जुमला फिर कह देता हूँ, जितने मेरे शिया सुन्नी बरादरान बैठे हैं, भाई देखो ये मोहब्बत अहले बैत नेमत है या नहीं? नेमत है ना, अल्लाह की नेमत है आले मोहम्मद की मोहब्बत, अल्लाह की नेमत है। मैं जुमला कहने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह जी आप सलामत रहे। खुदा की कसम ये मोहब्बत बड़ा पैगाम इन्होंने दिया है, ये तबर्रुक है, न्याज है, ये इतनी बड़ी नेमत है। मैं जुमला कहने लगा हूँ, अली की मोहब्बत इतनी बड़ी नेमत है, आज सजदे में सर रख के सारी जिंदगी कहूँ अल्लाह तेरा शुक्र है तो कम है कि अल्लाह तूने मुझे अली जैसा इमाम अता फरमाया। लो फिर मैं जुमला बदलने लगा हूँ, कारी साहब आएंगे तो मैं जुमला उनके सामने बयान करूंगा। लो मैं जुमला बदल, मोहब्बत अली ये किसी बंद कमरे की बात नहीं है। मोहब्बत अली वो गोहरे नजाब है, अगर लश्करे जदीद का नसीबा सलार इकरार कर लेता है तो वो हुर रज़ी अल्लाह नहीं रहता, वो हुर अलैहिस्सलाम बन जाता। अली की मोहब्बत वो गोहरे नजाब है, अगर लश्करे जदीद का सिपा सलार इकरार करता है तो वो हुर रज़ी अल्लाह नहीं रहता, वो हुर अलैहिस्सलाम बन जाता है। और दूसरी तरफ उलमा बयान करके लिखते हैं जिस शेबर ने 16 हज किए, हाफिज कुरान था, कारी कुरान था, तो पता न चल गया कि हाफिज कुरान भी हो, कारी कुरान भी हो, अगर उसमें उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं तो लानत के काबिल है। जिसके दिल में मिलाएगा, बिस्मिल्लाह जनाब सलामत रहे आप। बरोज़े महशर सुभान अल्लाह अली के नाम का शोर होगा। क्यों होएगा? शवाने के सूरज होएगा, ये टोप बड़ी होएगी, कई हजार साल का दिन होएगा, जमीन तांबे वांग टपी होएगी, ये लोग आखिर होना अली अली करो, जो अली अली कीता काम नहीं होना। सुभान अल्लाह। बरोज़े महशर
अली के नाम का शोर होगा, मलंगा ना होगा जुर्मट, नबर्रेबाजी का जोर होगा, धकेला जाएगा वो आदमी बागे फिजक का चोर होगा। हाथ खोल के मुंह बोल के मैं एक मोहब्बत बना और पैगाम बुजुर्गों ने पढ़ा है, आप सारे बैठे हैं मेरे सामने, मोहब्बत अहले बैत आपके दिलों में है जी, ऐसा कि नहीं है? सारे मोहब्बत बैठे हैं, लो जुमला कहने पैगंबर मेरे पास के नई मौली किताब मौजूद है, मौलाना गुलाम हुसैन नई भी लिखते हैं कि पैगंबर के ज़माने में, नबी रहमत के ज़माने में वो तजारत, आज माशाल्लाह जानते हैं कि बंदे तजारत के लिए जाते हैं तो मोबाइल पे सारी दुनिया एक एक मिनट का वाक़या है मतलब में बताया जाता है। जब पुराने ज़माने में जब बुजुर्ग जानते हैं कि जब खत भी बड़ी मुश्किल से आता था, वो ज़माना नबी पाक का ज़माना है, पैगंबर का ज़माना है, सैयदुल अंबिया का ज़माना है। एक बंदा तजारत के लिए गया किसी जगह पे, दूसरे मुल्क गया, वो कहते 3-4 साल न घर पता था जिंदा है, ना इसे पता था घर में क्या है। तो जो चाहूंगा जो लुत्फ लेना चाहते हैं, 3-4 साल के बाद घर आया वापस, पता नहीं था बीवी को शोहर जिंदा है कि नहीं। 3-4 सालों के बाद घर आया तो क्या देखता है कि उसके घर में 3-4 साल के 2 बच्चे खेल रहे हैं। 3-3, 4-4 साल के 2 बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को देखा, बीवी ने शोहर देखा, उसने कहा सुभान अल्लाह, आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा सलामत आ गए, तजारत के लिए गए थे। उसने कहा बाद में बताना, पहले मुझे बता ये बच्चे किसके हैं। ये घर जाके मेरा जुमला सोचना, बच्चे किसके हैं। उसकी बीवी ने कहा कि आपके जाने के बाद अल्लाह ने करम किया, 2-3 महीने के बाद अल्लाह ने ये जुड़वा बच्चे दिए, ये तुम्हारे बच्चे हैं। बात इस पे नहीं थी जुड़वा है, बात इसमें थी कि एक रंग काला था, एक का रंग गोरा था, ये गोरे चिट्टे थे। अब वो क्या था, उसने बच्चे को, काले बच्चे को देखा तो पूछा ये किसका है। उसने कहा ये तुम्हारा है। उसने कुरान उठाया, हमारे पास यही बड़ी किताब है ना, जब किसी को कुछ ना लगे तो कुरान चुक ले। तो जो उसने कुरान उठाया, उसने कहा मुझे बस, उसने कहा नहीं, ये ना मैं काला, ना मेरी नस्ल में तू काला, ना तू काली, ना तेरी नस्ल में तू काला, ये बच्चा कहाँ से आया है। मुझे लगता है आप वहाँ उसी पे जगह पे पहुँच गए हैं, लुत्फ जिसने लेना है। कहते हैं कि कहा ना बच्चा किसका है, अब ये जुमला कहा ना बच्चा किसका है। उसने कहा मुझ पे यकीन नहीं तो उसके पास ना चले, तो जो चाहूँगा। ये हवाएं भी लुत्फ ले रही है, ये इसका कोई मसला नहीं है, मुझे भी ये शाबाश दे रहे हैं ऊपर से। ये लिखा हुआ इमाम का नाम लिखा है। अब क्या है, उसने कहा उसी के पास ना चले जो वजह तखलीक के कायनात थे, आका के दरबार में चले, सैयदुल अंबिया से फैसला करवाए, या रसूल अल्लाह हमारे बच्चों के बारे में बताए। शौहर ने कहा चलो, अब गए। अब मैं कहता हूँ ऐसे बैठे थे नबी जैसे चांद सितारों में बैठे, यही हमारा अकीदा। ऐसे नबी तशरीफ फरमा जैसे रात को चांद सितारों में नबी रहमत बैठे थे। उधर से वो दाखिल हुए, अंदर आए। एक लम्हे से पहले मेरे नबी बता सकते थे, फैसला दे सकते थे, बता सकते थे, लेकिन नबी ने उन्हें आने दिया। तवज्जो चाहूंगा, नबी ने उन्हें आने दिया। और अगर किसी बंदे के ज़हन में ख्याल हो कि नबी को नऊज़ुबिल्लाह पता नहीं था, जितनी चीजें खाते हैं हलाल और हराम समझ के खाते हैं कि नहीं। बुजुर्ग बैठे हैं, जो समुद्री मखलूक है सारी तो नहीं खाते, पूछ के जाते मौलवी साहब हलाल कौन सी है, हराम कौन सी है। ऐसे ही जी, हलाल क्या है, हराम क्या है जी, बिस्मिल्लाह। हलाल क्या है, हराम क्या है, किसने बताया? नबी ने बताया कि समंदर में हलाल क्या है। मैं इंतजार करके बुलाता था, सलामत रहे। फखरे अहले सुन्नत बरादरान कारी यासीन साहब तशरीफ फरमा है, और इनके सामने मैंने अर्ज किया था कि मैं जुमला जरूर कहूँगा। कादरी साहब, एक फिका का मसला है, आप बरादरान अहले सुन्नत सीने का ताज, हमारे सर का ताज है। देखिए एक फिका का मसला है, उनकी मौजूदगी में मैंने इसीलिए रोक लिया था। मैं जुमला फिर कहूँगा, उनकी मौजूदगी में कहते हैं अगर हमारी फिका में अगर कुत्ता नमक की कान में गिर जाएगा, मेरे पहले में बैठा है, तो मुझे जाके पढ़ ले, सोशल मीडिया पे जाके किसी आलिम दीन से मुझे किसी से सवाल करे। अगर कुत्ता नमक की कान में गिर जाए, कुत्ता कुत्ता ना रहे, नमक बन जाए तो पाक हो जाता है।
शिया सुन्नी दोवे मौलवी ऐसी खलोते हैं। अगर कुत्ता नमक की कान में गिरकर नमक बन जाए वो पाक हो जाता है, लेकिन अगर कोई बुग़्द अली का कुत्ता है तो दोस्त से भी नहाए पाक नहीं हो सकता। मेहरबानी। तो मैं खत्म करूं क्योंकि उन्होंने भी जाके जिस जगह मैंने पढ़ना उन्होंने भी पढ़ना। पहले उनका प्रोग्राम था, पहले वो पढ़ेंगे, बाद में मैं बाद में जाऊंगा। अब वो आए थोड़ा सा आखिरी ये मैं जुमला कह के रहते तमाम। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने बात छोड़ दी, वो जुमला छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चों का फैसला करें। नबी रहमत ने देखा क्योंकि बच्चा था काला, एक बच्चा था गोरा, फैसला करवाना काले बच्चे के बारे में। या रसूल अल्लाह, ये बच्चा हलाली है या इसमें कोई गड़बड़ है, हलाली है या गड़बड़ है? अल्लाह के रसूल, क्योंकि इसी महफिल में जो मेरे मुस्तफा की महफिल थी, इसी महफिल में एक रंग का काला था, दिल का गोरा था, जिसे बिलाल कहते हैं। मेरे नबी ने अपनी नजरें दौड़ाई, पूछा ऐना ऐना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है? भाई रंग का काला है ना, हमारे सर का ताज है नबी के सहाबा। नबी पाक पूछते ऐना ऐना बिलाल, कौन ऐसे वादे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजा तो तब आता है नबी जब बुलाए बंदा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नहीं है कि दस्तरखान पे बुलाए तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैदान में बुलाए तो कहे या रसूल अल्लाह। हर जगह पे जहां बंदा कहे नबी, जहां पुकारे कहे लब्बैक। नबी ने बिलाल को फरमाया, बिलाल इधर आओ। बिलाल करीब आए, कायनात की रहमत ने बिलाल से फरमाया, बिलाल जरा घर जाओ ना, मेरे बच्चे ले आओ। तो जो घर जाओ, मेरे बच्चे ले आओ। मुझे कादरी साहब तशरीफ फरमा है, नबी के बच्चे कहाँ थे? एक को हसन कहते हैं। जानते थे साहबा किराम के नबी के बच्चे कौन से हैं? बिलाल ने नहीं पूछा या रसूल अल्लाह कौन से बच्चे लाओ। बिलाल को नबी ने हुक्म दिया, बिलाल चलते हुए जरा सैयदा में बोल के। दो शहजादे थे, एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। किसी का अब्बा भी जन्नत में नहीं जा सकता अगर हसन और हुसैन ना चाहे। हसनैन को लिया, नबी की महफिल सजी हुई है, दरवाजे से हसनैन आए, नबी ने दोनों को उठाया, बिला तफरीक लिखा है। नबी एक दानू पे हसन को बिठाया, दूसरे दानू पे हुसैन को बिठाया, दोनों की पेशानी पे बोसा दिया, ताजर की तरफ देखा, फरमाया जा, चला जा, दोनों हलाली हैं। पिछले बंदे मदीने पहुंच गए, जा ले जा, दोनों हलाली हैं। अब उठा महफिल पैगंबर थे, हाथ जोड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, दिल के सुकून के लिए, दिल की तसल्ली के लिए कोई दलील भी है? नबी ने फरमाया देखा नहीं था, जब मेरे हसन और हुसैन आए, तेरे दोनों बच्चे मुस्कुराए। अरे जो इन्हें देख के खुश होता वही तो हलाली होता। जो इन्हें देख के खुश होते हैं वही तो हलाली होता है। दोस्तों मैं क्या कहूँ, इन शहजादों के साथ क्या हुआ? एक जुमला पढ़ूंगा सिर्फ, मैं उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा, एक जुमले कह रहा हूँ। दोनों के साथ क्या हुआ? एक के जनाजे पे तीर, दूसरे का जनाजा तीरों पे। शहजादी फरमाती है कि मेरे नाना फरमाते थे हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है। शहजादी फरमाती है नाना दुनिया से चले गए, माँ दुनिया से चली गई, बाबा दुनिया से चले गए। मैं समझती थी हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, लेकिन जब इमाम हसन को ज़हर मिली ना 28 सफर को, इमाम का जनाजा उठा, शहजादी फरमाती है मेरे ज़हन में यही था, मेरा हसन अमीर है, मेरा हुसैन गरीब है। शहजादी फरमाती है जब हसन का जनाजा गया, अजर रिसालत मिला, हसन के जनाजे पे तीर लगे, जनाजा घर में वापिस आया, मैं तड़प गई। जनाबे फिजा के गले में बाहें डाल के बीबी रो रही थी। किसी ने फरमाया शहजादी भाई का जनाजा आया है, आप फिजा तो रो रही है। फरमाया देख रही हूँ कि जब मेरे अमीर की ये हालत है, अल्लाह जाने मेरे गरीब की क्या हालत है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत।
نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان حميد قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله مولانا العلي العظيم درود پاک اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس نے گرم موسم میں رحمت کی ہوائیں بھیج دی ہیں یہ ذکر اہل بیت اطہار کی برکت ہے اور اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے کہ آج کے پرفتن دور میں نفسہ نفسی کے دور میں مادیت کے دور میں خارجیت کے دور میں ناسبیت کے دور میں تکفیریت کے ماحول میں اللہ نے ہم کو ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع کیا اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو بانیان ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے اللہ ان کے گھر کو سجا دے اللہ کاروبار میں برکت دے رزق